Hi, good morning, everyone. This is Dr. Amit Kaurpuri, founder and president of AKP Healing India. And as I promised you that I will be coming today at 11 a.m. So I am here right here with all of you. Before I start Be Vocal Live Talk Show, I will be starting with the saying in Guru Granth Sahib in Gurbani, Sukh Sahaj Anand Ghana Har Kirtan Gau, गरह निवारे सतगुर दे आपन नाउ बलिहारी गुण आपने सत सत बल जाओ गुर विटौ हर वारियो just mill such suau. That means bestowing his name, the true Guru removes the evil omens. I am forever and ever with my Guru. I am sacrificed to Guru, meeting him. I am absorbed into true Lord. Good or bad omen affect those who do not keep the Lord in mind. So, with this positive note, we will be welcoming our celebrity guest today, and she is lovely, very, very interesting woman. And we have to say Khulja Sim Sim. Khulja Sim Sim, and she is with all of us right here, right now. A very warm welcome to you, Sangeeta Gupta ji, on Be Vocal Live Hello. Talk Show. Yes, you are audible, Sangeeta ji. We are live now. Can you hear me? So today our celebrity guest is Sangeeta Gupta ji. She is an just check your from here it is fine. देखिए आपने अपने आप को म्यूट तो नहीं किया हुआ? Please check. I am audible. Yes, Sangeeta ji. Am I audible to you? Amit, I can't hear you. But you are audible, Sangeeta ji. Audible. Okay. आप अपना दूसरा डिवाइस बंद कर दीजिए. मैं क्लोज कर रही हूँ उसको. कर दिया सारा क्लोज. अब ठीक है? Yeah, all fine. बिल्कुल सही है. Good morning, friends. I am assuming कि अमित ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोला होगा मेरी तारीफ में, जो मैं सुन नहीं पाई हूँ. बाद में उससे पूछ लूंगी. तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक सैटरडे की सुबह है और आप सब अपने फेसबुक पेज पे हैं. अब कोविड के समय में हम लोगों ने इस तरह ही जीना सीख लिया है और डिजिटल वर्ल्ड से ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं. ये भी एक बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम इसको नियामत की तरह ही देखें कि हम एक दूसरे से जुड़ तो पा रहे हैं ना. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और मैं समझती हूँ कि मेरा काम है कि मैं आज, मुझे अमित ने पहले ही बताया था कि मुझे अपनी जर्नी के बारे में बात करनी है, तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगी और अमित बीच बीच में मुझसे कुछ अगर और क्वेश्चन करना चाहें तो मुझे रोक लें, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो रुकती नहीं हूँ. ठीक है संगीता जी, here I want to introduce you. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए है. Guys, today our celebrity guest is Sangeeta Gupta ji, and she is my favorite. Sangeeta Gupta ji is an acclaimed artist, poet, filmmaker, recently retired as Chief Commissioner of Income Tax, also worked as advisor for finance and administration. She has to her credit 35 solo exhibitions of painting and 20 published books, including 12 anthologies of poems in Hindi and 3 in English. 9 of her collection of poems are translated in German, Greek, Mandarin, English, Bangla, Dongri, and Urdu. She has directed, scripted, and shot 7 documentary films, which are in the collection of Library of Congress, US. Song of Cosmos is her creative biography. So this about her, and there's much more about her, much more to know, much more to explore. And the theme for today's talk show at Be Vocal is artist expression with words and colors. And my first question to you, Sangeeta ji, about the theme, and it is about
artist, how important are the words and the colors in an artist's life? Oh, they are the words and the colors are the lifeline of an artist and a poet, and we can do without anything, but we cannot do without words and especially colors. Uh, for an artist, color is very important, and for an poet, we poets are basically wordsmith. वो जैसे सुनार गहना गढ़ता है ना, तो हम शब्दों से काम करते हैं, इसलिए मैं उसको लॉक स्मिथ या इस तरह नहीं कह के हम उसको वर्ड स्मिथ कह लेते हैं कि बिना शब्दों के और बिना रंगों के तो लाइफ में कुछ है नहीं। मैं अपने सारे आंसर्स बाइलिंगुअल रखूंगी क्योंकि मैं दोनों ही भाषाओं में लिखती हूँ, तो वो हमें हमारे ऑडियंस तक बात पहुंचे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है। और I can't do without. They are my lifeline. I'm madly in love with colors and also poetry. Words are very important to me. Wonderful. Very well expressed. Words are very important. Colors are very important in artist's life. And so these are very important aspects of Sangeeta ji's life also. Sangeeta ji, before we start your journey discussing and knowing about your journey, I want that you should, if you can recite one of your poem. And Okay. my favorite poem for your poem, which is my favorite, is this one. One second. Okay. Ends are beginnings. Your poem Ends Are Beginnings. Yeah, that is my favorite poem. Let me try to. Or any poem as you like. During the course of this talk show, I will read that. To initiate, I would like to read one or two small shares. तो वो है, Yes. मैं हमेशा इसी बात से शुरू करती हूँ कि अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं, तुम तक पहुंच जाए तो लगता है दुआ कबूल हो गई। ये अपने ऑडियंस के लिए है। अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं, तुम तक पहुंच जाए तो लगता है दुआ कबूल हो गई। एक और शेर है जो हम सारी औरतों के लिए भी कहते हैं और अपने बेटे के लिए भी कहते हैं, कि लड़कियों के लिए आज जरूर कहूंगी क्योंकि अभी लास्ट वीक में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक तरफ हम डॉटर्स डे मनाते हैं और दूसरी तरफ डॉटर्स की कोई कद्र नहीं करते, उनको मारने में लगे रहते हैं, इतना खतरा पैदा कर देते हैं। तो लड़कियों के लिए है, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूं मैं तुम्हारा, घोंसला हूं मैं तुम्हारा। ये आपके लिए भी है अमित, तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि हम सब अपनी उड़ान पे हैं और बीच में थकान होती है, तो जो दोस्त होते हैं, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके लिए घोंसला बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी, आप तो मेरी फेवरेट हैं और एब्सोल्युटली आपने जो कहा, बिल्कुल, जब मैं कुछ इंस्पिरेशन चाहती हूँ, मैं कुछ चाहती हूँ कि मुझे कोई इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आई जस्ट गो टू योर फेसबुक पेज, वहां पे जाके आपके कुछ शेयर पढ़ लेती हूँ और शेयर पढ़ने के बाद इतनी मोटिवेट और इंस्पायर हो जाती हूँ कि मैं एक नई एनर्जी से भर जाती हूँ। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, घोंसला हूँ मैं तुम्हारे संदर्भ में बिल्कुल बिल्कुल सच है। संगीता जी, आपकी लाइफ की जर्नी इस बुक में बियॉन्ड द बाउंड्रीज जो मैंने पब्लिश की थी, इसमें पेज नंबर 75 में देयर इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ संगीता गुप्ता जी, उनके बारे में लिखा है। तो आज उनकी जर्नी हम सुनेंगे, उन्हीं की जवानी इस किताब में तो है। और इसमें एक उनके बारे में मैंने एक लाइन लिखी थी, व्हेन द स्काई इज लिमिट ब्रेक द बैरियर्स, एंड she has broken all the barriers and she has reached beyond the boundaries. So the book name, the Beyond the Boundaries, as Sangeeta ji's life story, life journey, is actually the true example of going beyond the boundaries, breaking all the barriers. Now, Sangeeta ji, I would like that you should discuss about your life journey as an achiever, and we all know that you have crossed all the limits of success. Over to you.
थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। एक्चुअली मुझे लगता है कि सारी जर्नी में आप अकेले चलते तो जरूर हो, पर हमेशा आई बिलीव इन होल्डिंग हैंड्स। अगर हम एक दूसरे का जरूरत पड़ने पे या समय समय पे हाथ पकड़े रहे ना, तो वो जर्नी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और साथ ही साथ आप दूसरे का हौसला भी बनिए, और कभी दोस्त आपके 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 दोस्त भी आपका हौसला बनते हैं। तुम्हारी बुक के लिए तुम्हें बहुत मुबारकबाद, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है और बहुत सुंदर किताब बनाई है। हमें अपने रियल हीरोज को खोजने की जरूरत है। आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में या बॉलीवुड में या इंडिया में, हमें पता चल गया है कि हमारे रियल हीरोज हमारे रियल लाइफ से होने चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए। हमारे रियल लाइफ से ही हीरोज हों तो हमारे लिए अच्छा होगा, और चाहे वो हमारे उससे हो। रूपा, मैं ऑनलाइन हूँ, तुम लिंक पे क्लिक करो। हाँ। तो हमारे जो दोस्त हैं, हमें उनमें या अपने बच्चों के लिए, अभी गगन की एक किताब आई है जो सिख लोगों के ऊपर है, उसमें उन्होंने 55 ऐसे लोगों को चुना है जिससे हमें अपने हीरोज खोजने पड़ेंगे। 300 साल तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे, उसके पहले मुगलों के अधीन रहे, तो हमने अपने जो हमारे रियल हीरोज हैं उनके ऊपर काम नहीं किया है, और इसके लिए तुमने ये काम किया है, औरतों को आगे हाईलाइट किया है, ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रियली एडमायर यू फॉर दैट। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में अपने बचपन से स्टार्ट करती हूँ, छोटे में बताती हूँ। आई वॉज बॉर्न इन अ फैमिली विच वॉज वेरी एजुकेटेड। बहुत पढ़े लिखे लोगों का परिवार था, दोनों तरफ से, मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी। मेरे ग्रैंडफादर्स जो थे वो बहुत एजुकेटेड थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, फादर भी बहुत पढ़ने लिखने में थे, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट, बिकॉज इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को दे नहीं सकते। आई वॉज द थर्ड डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, बट आई नेवर फेल्ट दैट कि मुझे इतना पैम्पर किया गया, अपने भाई से भी ज्यादा पैम्पर किया गया। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या कोई भी हो, कोई भी बच्चा उनका हो, तो वो बच्चा निखर के आता है। तो अगर आज मैं कुछ भी बन पाई हूँ तो उसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एजुकेशन, अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ है। पढ़ने के ऊपर उन्होंने बहुत स्ट्रेस डाला और कहा कि वी कैन ओनली गिव यू दिस गिफ्ट। मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ, तो हमेशा दोस्तों से घिरी रही हूँ, और वो मेरा अभी भी मेरा एक वो है कि बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, बिकॉज वो आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, आपके लाइफ लाइन होते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। स्कूलिंग मेरी गोरखपुर से हुई, उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में पढ़ी 2 साल, और फिर BHU से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म ही हुआ था, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और एक जॉब मिला, जूनियर रिसर्च फेलो। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं जूनियर रिसर्च फेलो बनी, और मुझे उस समय 400 रुपीज पर मंथ उसके लिए मिले। आई वॉज हैप्पी, दैट दोज वर द हैप्पीएस्ट डेज, जब 400 रुपए भी बहुत होते थे। उसके बाद हमने ऐसे ही अप्लाई किया, और मैं लेक्चरर बन गई पॉलिटिकल साइंस की, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में। वहां रह के मुझे लगा कि मेरा होराइजन बहुत छोटा है, एजुकेशन बहुत बड़ा फील्ड है, पर वहाँ उस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे, 100-200 बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे। मुझे लगा कि मुझे देश के लिए काम करना है, इस सिस्टम को बदलना है, तो मैंने सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए, और मुझे 1984 बैच में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए सेलेक्ट किया गया। फिर मैं नागपुर चली गई नौकरी से रिजाइन करके, और वहाँ ज्वाइन किया, और मेरी ट्रेनिंग हुई 18 महीने, और वहाँ पे फिर नए सिरे से मैंने नए सब्जेक्ट सीखे, लॉ और अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें सीखी। शुरू में लगा कि मैं सिविल सर्विसेज इतना कठिन नहीं है जितनी ये ट्रेनिंग है, मगर ट्रेनिंग को भी मेरे लिए डेबिट क्रेडिट भी एक नई चीज थी, और मेरा फील्ड ये होने वाला था, तो उसके लिए ट्रेन हुई, और वहां से भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो कोशिश ये रहती है कि जो करो उसको ठीक से करो। मेरा मैसेज लोगों के साथ ये है कि जब जो करो उसमें 100% रहो। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इलाहाबाद हुई, और मेरी क्रिएटिव जर्नी यहाँ से स्टार्ट तो बहुत पहले से थी, मगर वो एक टेंजिबल फॉर्म उसने लिया। मैं पोइट्री लिखती थी, 16-17 साल की उम्र से लिखने लगी। मैंने बचपन में बहुत किताबें पढ़ी, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास
पढ़ने की चीजें ज्यादा होती थी, टीवी था नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शंस थे नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो पूरी गर्मी की छुट्टियों में जितनी किताबें पढ़ सकते थे वो पढ़ते थे। तो मैंने टैगोर की गीतांजलि पढ़ी और वो मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू की तरह हुआ। मैं इतनी ज्यादा रविन्द्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड हुई कि मैं खुद लिखना शुरू कर दिया। और आई डिडंट रियलाइज कि मेरे अंदर भी एक कोई पोएट है, बट वो मैं पढ़ती थी और पोइट्री बहुत ज्यादा पढ़ती थी, और पोइट्री में मेरा इंक्लिनेशन था और मैंने खुद भी लिखना शुरू कर दिया। पर वो दिखाती नहीं थी, आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन और बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, तो पोइट्री किसी को दिखाई नहीं जाती थी वो। पर जब कॉलेज में आए और ट्रेनिंग कॉलेज में आए तो दोस्तों ने पढ़ना शुरू किया उसको, और सबने बहुत इंसिस्ट किया कि तुम अच्छा लिख लेती हो, तुम इसकी किताब बनाओ। तो जब इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी लिखता पढ़ता था, तो उसने कहा मैं महादेवी वर्मा से मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मेरी बड़ी फेवरेट पोएट है। तो मैं उनके पास मिलने गई उन्हीं के साथ, और मैंने उनको कहा कि मैंने कुछ कविताएं लिखी, मैं अपना मैन्युस्क्रिप्ट लेके आई हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, और अगर आप इसका फॉरवर्ड लिखें तो दैट वुड बी फॉर मी इट वुड बी द, उससे ज्यादा मुझे और कुछ चीज से खुशी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने उलट के कहा कि भाई तुम इनकम टैक्स में बहुत बड़ी अफसर हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमिट कर दूं कि मैं तुम्हारी किताब का फॉरवर्ड लिखूंगी। तो हमने मैं भी यंग थी, जोश में थी, मैंने कहा अगर आप ये पढ़ती हैं और आपको लिखने का मन नहीं है, आपको लगे कि मैं पोएट नहीं हूँ, तो आप मत लिखिएगा, और मैं इस मैन्युस्क्रिप्ट को उठा के बक्से में बंद कर दूंगी, मैं उसको कभी पब्लिश नहीं कराऊंगी। लिखेंगी तो आप लिखेंगी, नहीं लिखेंगी तो ये बॉक्स के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा छोड़ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देखा जाएगा कैसे होगा, करूंगी या नहीं करूंगी, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं लौट आई, ऐसे काफी दिन निकल गए, 2-3 हफ्ते निकल गए, और वहां से ना उनका कोई फोन आया ना मैसेज आया, और मैंने ठान लिया कि मैं पूछूंगी नहीं। तो एक दिन अचानक ऑफिस में थी, फोन आया उनके सेक्रेटरी का कि महादेवी जी आपको याद कर रही है। अरे वाह। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छी बात है, याद कर रही है, मैं ऑफिस के बाद घर जाऊंगी और फिर 7-8 बजे तक आती हूँ। बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि ऑफिस से बोलो संगीता को कि वो सीधे मेरे घर है। जब मैं गई तो उन दिनों उनकी तबीयत उतनी ढीली हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लेटी हुई हूँ, मगर तुम ऐसा करो, जाके सामने वाला ड्रॉर खोलो, वहां पे तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मैंने खोला तो वहां अपनी हैंडराइटिंग में उन्होंने मेरी किताब का फॉरवर्ड लिखा था, और एक और छोटे कागज पे 3 नाम लिखे थे किताब के लिए कि और ऐसी इतनी हम्बल थी कि उन्होंने ये कहा संगीता अगर इसमें से कोई नाम तुम्हें पसंद हो तो अपनी किताब का रख सकती हो। तो ये मेरे लाइफ के एसेट्स हैं, मेरी इंस्पिरेशन है। इतना ग्रेटिट्यूड से मैं भर जाती हूँ कि इस तरह की चीजें मेरे लाइफ में हुई। और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इसके बदले में कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताइए। बोली वो मैन्युस्क्रिप्ट लेके आओ, मैं लेटी हुई हूँ, मुझे इसमें से पढ़ के अपनी आवाज में कविताएं सुनाओ। तो ये है मेरा तो इस तरीके से मेरी एज अ पोएट रिकॉग्निशन और जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा मेरा हाथ कांप रहा है, वो खुद बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी, स्केचेस बनाती थी। उन्होंने कहा मेरा हाथ कांपने लगा है, मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे बुक का कवर भी बनाती। और मैं अपने पब्लिशर को बुला के ये मैन्युस्क्रिप्ट उनको देती हूँ कि वो ही पब्लिश करेंगे, जो मेरा पब्लिशर है। तो इलाहाबाद का एक बहुत रेप्यूटेड पब्लिशर था, साहित्य भवन लिमिटेड, उन लोगों को उन्होंने बुलाया। मैन्युस्क्रिप्ट में लेके नहीं आई, महादेवी जी ने भेज दिया उनके पास, और फिर वो किताब इलाहाबाद से 1988 जनवरी में छपी। इसके पहले अनफॉर्चुनेटली महादेवी जी नहीं रही, 87 सितंबर में उनकी वो शी पास्ड अवे। तो मैंने वो बुक भी उन्हीं को डेडिकेट किया। इस तरह से एक बहुत खूबसूरत जर्नी पोएट की स्टार्ट हुई। और सबसे बड़ी बात है कि एज अ पोएट मैंने स्ट्रगल नहीं किया पब्लिकेशन के लिए, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो खुदा है और वो चाहता है कि इसको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पोएट की। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं कलकत्ता आ गई, और मेरा बेटा पैदा हुआ। तो उसके बाद तो लिखना नहीं, वो खुद पोएट्री बन गया मेरी। तो बहुत 2-3 साल का गैप हो गया। 88 के बाद 91 में एक किताब आई, नागफनी के जंगल। वो मेरी स्टोरी कलेक्शन थी, वो सारी स्टोरीज अलग मैगजीन्स में छप चुकी थी। वो भी इलाहाबाद से छपी, दूसरे पब्लिशर से।
उसके बाद लंबा गैप रहा, 96 में जाकर मेरी किताब आई तीसरी, इस पार उस पार। तो इस तरीके से पोएट की जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत बढ़िया। सुन के मैं भाव विभोर हो गई कि वाओ, आप महादेवी वर्मा से सिर्फ मिली ही नहीं है बल्कि आपकी पहली पुस्तक का फॉरवर्ड भी उन्होंने लिखा है। बहुत हाँ बहुत ये बड़ी बात है। हाँ ये मैं अपनी नौकरी से, सिविल सर्वेंट होने से या और चीजों के रिकॉग्निशन से भी ज्यादा अपने लिए ये, मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल, जी बहुत जी, वैल्यूएबल है। बहुत अच्छा। तो संगीता जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी एज अ पोएट जान के। नाउ आई आल्सो वांट टू नो, एज अ पेंटर, यू आर पेंटर आल्सो, यू पेंट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऑन कैनवस। तो कैनवस का एकदम जो प्लेन कैनवस होता है उसमें आप रंगों को भर के उसमें जीवन भर देती हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी क्या इंस्पिरेशन है? अब मैं हम लोग बहुत एक छोटे से टाउन में रहते थे। वो अब एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था, और जी इसी के कारण वहाँ पे एजुकेशन की इतनी सुविधा नहीं थी। तो मैं गोरखपुर में कॉन्वेंट में एक था कामिल स्कूल, उसमें हॉस्टल में रहती थी। तो जब गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो हम लोगों को, मेरे फादर बहुत इंस्पायर करते थे क्रिएटिव चीजों को करने के लिए, बोलते थे खूब पढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो। तो मैं बचपन से ही अपने स्केच बुक्स में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा स्केच करती रहती थी। धीरे धीरे लोगों को पसंद आता था, तो कभी कई बार फैब्रिक पे भी अपने कजन्स के लिए कुछ पेंट कर दिया, कुशन पेंट कर दिया। ऐसे पेंटिंग का शौक था मुझे बचपन से, और लिखने का भी था। तो वो शौक इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि कहीं गैप हुआ ही नहीं। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जॉब मिल गया, फिर दूसरा जॉब मिल गया, फिर ट्रेनिंग में सिविल सर्विसेज में मैं चली गई, तो वो हम उसको परस्यू नहीं कर पाए। पर जब मैं कलकत्ता में पोस्टेड थी तो मुझे लगा कि मैं अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैंने उसको सीरियसली परस्यू करने के लिए सोचा। और मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक वो था, YWCA था। तो मैंने वहाँ बैनर पे लिखा पढ़ा, देखा कि वहाँ लिखा हुआ है कि आप 1 घंटे का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा मैं अपनी चीजों को रिवाइव करने के लिए, तो मैं लंच टाइम में दौड़ के 1 बजे वहां जाती थी, और 1 से 2 अपने लंच टाइम को ऐसे यूटिलाइज करती थी और क्लास करके आती थी। तो थोड़ा फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मेरी एक राइटर फ्रेंड थी, प्रभा खेतान, बहुत ही एक्लेम्ड राइटर है हिंदी की। उनके घर गई तो मैंने उसके घर में देखा बहुत ही खूबसूरत 3-4 पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो मैंने कहा ये कौन आर्टिस्ट है, का काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा सनत रे हैं। और मैंने कहा यार मुझे उनसे मिलवाओ। और मैं सोचती हूँ मैं तो सीख नहीं पाई सीरियसली, तो अपने बेटे को सिखवा देती हूँ, बचपन से ही अगर सीखेगा तो एक अच्छा उसको वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात करके तुम्हारे पास वीकेंड में भेजती हूँ। उन्होंने सनत सर को भेजा मेरे घर। उन्होंने मेरे बेटे को देखा, बेटा मेरा मुश्किल से उस समय 3 साल का होगा, तो हंसने लगे, बोले ये अभी बहुत छोटा है, और ये अभी जब 6-7 साल का हो जाए, कम से कम 6-7 ईयर्स का हो जाए तो ये करेगा, ये तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो हमने कहा नहीं वो सुनेगा। तो बोले कि, और उन्होंने जो प्राइस कोट किया वो मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे इतना आता है, मैं इसको सिखा लूंगी। ऐसा करिए सर, आप मुझे सिखाइए, और मुझे ना काफी अच्छा आर्ट आता है, आप मुझे ऑयल पेंटिंग सिखा दीजिए, उसकी टेक्निक मेरे ग्रिप में नहीं है। तो उन्होंने कहा खुलते ही कहा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो हाँ, तो मैंने कहा सर क्यों नहीं सिखाएंगे? बोले रोज आपका नाम अखबार में छपता है, आप यहाँ सर्च कर रही हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं आपके बारे में जानता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, तो आप नहीं सीख पाएंगी। मैं ऐसा स्टूडेंट ही नहीं लेता जिसके पास समय ही ना हो, और वो कैसे डेडिकेटेड होगा। मैं ऐसे ही डिसाइपल्स लेता हूँ जो डेडिकेशन के साथ काम करे। ये बात मुझे बहुत हिट कर गई, मेरे दिल को चोट पहुंची कि मेरे को कोई बोल रहा है कि तुम नहीं सीख सकती हो। तो मैंने कहा सर आप मुझे एक लिस्ट दें और मैं सीरियसली सीखूंगी। मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, मैं सुबह 8 से 10 आपके साथ सीखूंगी, और मुझे ज्यादा सीखना ही नहीं है। तो बड़े रिलेक्टेंटली उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी। बोले आप खरीदेगा मत, पैसा मत बर्बाद करिएगा, रुक जाइए, और 10 दिन बाद अगर आपको लगता है कि आप सीख सकती हैं तो मुझे फोन करके बताइएगा। मैं समझता हूँ कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। ये बात बहुत खली, और फिर मैंने उसी दिन, अगले दिन ही मेरे ऑफिस के पास वहाँ पे कलकत्ता का सबसे बड़ा सेंटर था जहाँ पे आर्ट की चीजें मिलती थी, वहां से सब कुछ खरीद लिया और ठान लिया कि मैं इनको गलत साबित करके दिखा दूंगी। और फिर
मैंने उनको फोन किया कि आ जाइए आप, मैंने सामान खरीद लिया है और मुझे सिखाइए। बहुत बेमन से वो मेरे घर आए मुझे सिखाने के लिए, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। मैंने कहा होमवर्क करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ये सैटरडे संडे में 2 घंटे जो मैं सीखूंगी वही मेरे उतना ही टाइम है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, नौकरी भी बहुत टफ है। तो शुरुआत हुई, मैंने कहा मुझे ऑयल पेंटिंग सिखाई। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें पहले पेंसिल से स्केचेस बनाने पड़ेंगे, फिर से शुरू करो। Whatever you have learned, you unlearn that, and then you start your journey again. And let's see how far you can go. तो फिर उन्होंने मुझे पर्दे का फोल्ड बनवाया, पेंसिल से इतना काम कराया कि मैं कभी कभी परेशान हो जाती थी कि मैं किन चक्रों में पड़ी हूँ, मुझे तो ऑयल पेंटिंग करनी है। फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, और 1 महीने बाद ही उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम गलत प्रोफेशन में हो, तुम्हें फुल टाइम आर्टिस्ट होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर इतना फायर है आर्ट के लिए कि आर्ट कॉलेज जाती तो कुछ होता। फिर लगातार मैं उनके साथ 3 साल तक काम करती रही, हर सैटरडे संडे डेडिकेशन के साथ। एक दिन उन्होंने कहा कि चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं और अपना ये पोर्टफोलियो ले लो। लेके गए तो सामने हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड कल्चर था, वहाँ लेके गए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि ये इसका पोर्टफोलियो है, जरा देखिए, और हमें एक एग्जीबिशन करनी है इसकी। मेरे से कुछ नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पोर्टफोलियो देखा, उन्होंने कहा कि हाँ बुकिंग मिल सकती है, और नवंबर 95 की मुझे बुकिंग मिली। उन दिनों मैं मदर टेरेसा के पास बहुत जाती थी और काफ़ी सोशल वर्क उनके साथ करती थी। उनसे भी मेरा बहुत लगाव रहा, जैसे महादेवी जी के साथ था। तो जब बुकिंग हो गई तो मैं मदर टेरेसा के पास गई, मैंने कहा कि क्या आप मेरा शो इनॉग्रेट कर दूंगी, और अगर मुझे नहीं मालूम मेरा काम कैसा है, अगर कुछ भी बिकता है तो मैं सारा पैसा आपको आपके सेंटर के लिए दे दूंगी, आपके होम के लिए दे दूंगी। वो हंसने लगी, उन्होंने कहा आजकल मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम ऐसा करो तुम डेविड को दे दो। आई आस्क्ड हु इज डेविड, तो उन्होंने कहा वो क्राई का है, यहाँ का डायरेक्टर है, और वो पैसे की तलाश में घूम रहा है आजकल, भटक रहा है, क्योंकि राजरहाट एयरपोर्ट के पास एक सबर्ब्स है, वहाँ पे उनको एक एजुकेशन सेंटर बनाना था बच्चों के लिए, जो स्लम के बच्चे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जो भी अगर कुछ हमने सेल किया तो वो सब हम क्राई को दे देंगे। ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मदर टेरेसा ने शो को इनॉग्रेट किया, और मेरे सारे काम इसलिए बिक गए क्योंकि मैं चैरिटी के लिए कर रही थी, और क्राई को हमने एक बहुत हैंडसम अमाउंट दिया, तो उससे वो बच्चों का एक सेंटर बना राजरहाट में। ये मेरा बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मदर टेरेसा ने मेरा शो इनॉग्रेट किया, और उस पैसे से हम लोग एक एजुकेशन सेंटर बना सके छोटे बच्चों के लिए। तो वो जर्नी भी बहुत मेमोरेबल है, बहुत स्पेशल है। मदर टेरेसा जैसी हस्ती आपके शो को इनॉग्रेट करते समय दिया न जलाएं, एक प्रेयर से स्टार्ट करें, एंड सबको उन्होंने कहा कि तुम लोग सब मिलके मेरे साथ इस प्रेयर को रिपीट करो। दैट ऑल्सो वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। सो मेरी दोनों जर्नी में मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मैं काम करती रही, और वो मुझे ऊपर वाले और यूनिवर्स की इतनी मेरे पर वो सपोर्ट सिस्टम मेरा इतना स्ट्रांग था कि वो जर्नी भी बहुत, कोई ग्रुप शो नहीं किया, सीधे सोलो किया, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 35 सोलो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, कॉर्नर्स में, ग्रीस में, जर्मनी में, पाकिस्तान में, कोई बहुत कम कंट्रीज है जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ ग्रुप शो या सोलो एग्जीबिशन के लिए। सो इट हैज बीन अ वेरी मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग जर्नी एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपके लाइफ की जर्नी तो एक मूवी बना सकते हैं संगीता जी इसके ऊपर। सच में, और वो बहुत पिक्चर चलेगी भी, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट के फॉर्म में, यू आर ब्यूटीफुल, लवली पेंटर, यू पेंट सो वेल, और आप इतना अच्छा लिखती हैं, तो आपका अंदर से जो आपकी सोल है वो कितनी सुंदर होगी। मैं आई कैन वेल इमेजिन द ब्यूटी ऑफ योर सोल। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके, एक रिफ्रेश मैं हो रही हूँ, और मैं भी खुद भी मोटिवेट हो रही हूँ आपसे बात करके। इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट जो आपकी लाइफ का है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, जो हर लड़की की लाइफ में होता है, वो सफर कैसा था आपका? वो सफर भी बहुत अच्छा रहा अमित, क्योंकि मैं, आई थिंक माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। नाउ दे आर नॉट नो मोर इन दिस वर्ल्ड. They passed away. My father passed away in 2008 and my mother passed away in 2015. हम अपने माँ बाप का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते, और जो भी करते हैं वो कम ही होता है।
जब आपका अपना बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन पता चलता है कि माँ ने आपके लिए क्या किया, आपके फादर ने आपके लिए क्या किया है। सारी सारी रात आप सोते नहीं हो, बीमार होते हो, वो गोद में लेके आपको घूमते हैं, पूरी रात जागते हैं। इट्स अ वेरी वेरी noble and demanding work, you know, to be a good parent. तो वो मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही है। माय मदर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ. माय फादर वाज मोर ऑफ अ इंस्पिरेशन बिकॉज ही वाज वेरी ब्रिलियंट, वेरी मेथोडिकल, डिसिप्लिन्ड. मेरे में डिसिप्लिन बचपन में थोड़ा कम था, मैं बहुत ज्यादा सोती थी, तो हमेशा डांटते थे, बोलते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो वो मेरे से इतना नहीं हुआ, मगर मैंने अपने फादर की मेमोरी में एक कल्चर सेंटर बनाया है जो रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट किया, पृथ्वी फाइन आर्ट एंड कल्चर सेंटर. तो पृथ्वी मेरे फादर का नाम है. तो हम अपने इस डेट को कभी चुका नहीं सकते, उसकी छोटी कोशिश है पृथ्वी फाइन आर्ट एंड कल्चर सेंटर फादर के लिए. मदर मेरे साथ बहुत रही बाद में भी, क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं सर्वेंट्स के भरोसे केवल अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती. तो माँ कॉन्स्टेंटली मेरे पास रहती थी, और उसकी अपब्रिंगिंग मेरे बेटे की ज्यादा मेरे माँ ने की है. वो 2 बच्चों को पाली थी, एक मुझे जो मैरिड और नौकरी कर रही थी, और साथ में मेरा बेटा भी. तो हर प्रेजेंस मेड माय लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं अपने बेटे की तरफ से निश्चिंत रहती थी कि इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग और कोई कर नहीं सकता जितना एक नानी कर सकती है. माय मदर वाज अ वेरी एजुकेटेड, वेरी एबल पर्सन. बच्चे को उन्होंने म्यूजिक भी सिखाया, बेटा मेरा फ्लूट सीखता था, उसके पर पूरा ध्यान दिया, कैसा क्या खाएगा, कब होमवर्क करेगा. मैं घर आती थी तो मुझे इस चीज की चिंता नहीं होती थी कि वो कैसे, उसका क्या हो रहा है. तो वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही. मेरी शादी एक आईपीएस ऑफिसर से हुई थी, और मैं 10 इयर्स तक उस मैरिज में थी, पर मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, पर वो कुछ कारणों से ठीक से चल नहीं पाई. फिर हम लोग म्यूचुअली अलग हो गए. पर मेरे हस्बैंड ने एक अच्छे फादर की जो भूमिका होती है वो अपने बेटे के साथ निभाई, और ही इज अ वेरी गुड फादर. और मेरे बेटे की उससे बहुत सुंदर संबंध है, तो आई थैंक हिम फॉर दैट. अगर चीजें ठीक से नहीं चलती हैं तो हमेशा उसको एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना चाहिए. कहते हैं ना कि चलो फिर से अजनबी हो जाए, और अगर हमारे रास्ते अलग अलग हो भी जाएं तो बिटरनेस नहीं होनी चाहिए. हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए. हर आदमी में कुछ अच्छा और कुछ खराब होता है, मगर अगर हम सिर्फ उसके अच्छेपन को देखें, जरूरी नहीं है कि हर आदमी एक अच्छा स्पाउस भी हो, पर एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, एक अच्छा आपका वेलविशर हो सकता है. ही इज अ वेरी गुड फादर. ही वाज नॉट सच अ गुड हस्बैंड बिकॉज उसकी जॉब ऐसी थी, वो भी एक रीजन था. पुलिस का आदमी बिल्कुल फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है. तो अब मैच्योरिटी आई तो हम एक दूसरे के वेलविशर हैं, और एक दूसरे के साथ कोई भी बिटरनेस नहीं रखते. तो वो मैं सच इसलिए बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो औरतें इसको सुन रही हैं, किसी भी मैरिज में सफ़र करना जरूरी नहीं है. आप डिग्निटी के साथ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ अलग भी हो सकते हैं, और इट इज़ डूएबल. सिंगल पेरेंट होना बहुत कठिन काम है, पर ऐसा असंभव भी नहीं है, आप उसको कर सकते हैं. और बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़रूरी है कि बिटरनेस ना रिफ्लेक्ट हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो. तो मैं अब इस बात को खुल के कहती हूँ कि ये हर चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं लाइफ में. आप एक अच्छे, पर आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ गुड मदर, आई हैव बीन अ गुड डॉटर, आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ सपोर्ट सिस्टम टू मैनी 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 पीपल. ये है हमारी फैमिली की जर्नी. बहुत अच्छा. यू आर ट्रूली एम्पावर्ड वुमेन, आई कैन से संगीता जी. और आज मेरा आपके प्रति ना और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. तो हम बातें करते हैं सभी लोग वुमेन एम्पावरमेंट की, बट जब तक हम अपने आप को एम्पावर ना करें, जब तक हम अपने दिल को ना समझें, अपने जहन को ना समझें, तो दूसरों को भी एम्पावर हम नहीं कर सकते जब तक हम अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे. तो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं संगीता जी, जो कि हमें बंदिशों में बांध लेते हैं. और एक लेडी ये सोचती है शादी के बाद अगर उसको किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, यू कैन से, या ऐसा रिलेशनशिप जिसको वो
नहीं चाहती हैं जिस तरीके से, लेकिन तब भी उसमें बंधी रहती हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षा दी जाती है उनके पेरेंट्स की तरफ से स्पेशली, या उनके जो नियर एंड डियर सबसे पहले यही बोलते हैं, नहीं ये रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू रखिए। और उनमें भी इतनी क्षमता या ताकत नहीं होती है कि वो इस रिलेशन को एक अच्छा मोड़ दे सकें, एक अच्छा एंडिंग दे सकें। जैसे आपने बोला, किसी भी रिलेशनशिप में मतलब कोई भी इंसान एक अच्छा पति हो सकता है, बेशक ना हो, लेकिन वो अच्छा इंसान जरूर हो सकता है। देखो, सब में कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, और एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छा इंसान, ठीक है हमारी आपस में कंपेटिबिलिटी बाद में नहीं रही, पर मैंने उसको पसंद भी किया था, उससे अपनी पसंद से शादी की थी। तो एक अच्छे रिलेशनशिप में या जैसे भी रिलेशनशिप में आप 10 साल रह चुके हैं तो उसके लिए रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए, उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे खूबसूरत पल भी उसके साथ बिताए थे, तो हमने कहा कि हम अच्छे फ्रेंड रहेंगे, हम अच्छे वेलविशर रहेंगे एक दूसरे के, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करके म्यूचुअली हम अलग हो जाएंगे, और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के लिए खड़े भी हो जाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस होना भी बहुत बड़ी बात होती है संगीता जी। हर किसी के लाइफ में ऐसे साथी नहीं मिलते हैं जो इस बात को समझें, क्योंकि बिटरनेस मैंने देखा, और अब बहुत ज्यादा हो जाती है जी। और एक फैक्टर मैंने ये भी देखा है संगीता जी, इंडियन वुमेन इसलिए अपनी मन की बात नहीं सुन पाती है कि फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट होती हैं बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे पास ये प्लस पॉइंट था, मेरा ये प्लस पॉइंट था। मैं हमेशा औरतों से ये कहती हूँ कि जिस दिन तुम्हारी शादी होती है, तुमने अपना लाइफ का चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। जो काम करती थी वो भी काम छोड़ देती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, बच्चा छोटा होता है, फैमिली की बहुत सारी डिमांड्स आ जाती, उसमें से सिर्फ 1 घंटे भी तो निकालो अपने लिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी अपनी इनकम रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर बचानी है ना। और कल को लाइफ में कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाए, मान लीजिए कोई इवेंचुअलिटी ऐसी हो जाए कि दूसरे आदमी की डिमाइस हो जाए, तो क्या करिएगा आप अपने स्पाउस के न रहने पर? आपको अपने बच्चों को देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा। तो ये जो एसेट है ना वर्किंग वुमेन का, वो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। चाहे आप अपने वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल कर लो, आपका बच्चा छोटा है आप उसके साथ एडजस्ट कर लो, घर से काम कर लो, और जब बच्चा स्कूल जाता है तो आप फ्री होते हो ना, तो उस समय आप उनको उनको उस टाइम को यूटिलाइज कर लो। इतना टीवी मत देखो, इतना गॉसिप मत करो, प्रपंच मत करो, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्टिव कुछ करो, सोसाइटी के लिए करो, ना कर पाओ अपनी फैमिली के लिए करो। फैमिली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी में कोई रोमांस है नहीं, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अ चाइल्ड इज अ मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप उसके लिए अगर टाइम निकाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या हमने भी अपने बच्चे को पाला ही है, बड़ा ही किया है। फैमिली की सपोर्ट सिस्टम ले लो, सपोर्ट ले लो उसकी, मगर अपना काम मत छोड़ो। चाहे आप पहले 8 घंटे करते थे, चाहे 1 घंटे करो, मगर काम मत छोड़ो। क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना औरत के लिए निहायत ही जरूरी है, और इससे केवल आपकी डिग्निटी नहीं बचती, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचता है। उसके साथ आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो। इकोनॉमिक फ्रंट भी देखो ना कि देश के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या। आप तो आधा हिस्सा मांगने को तैयार हो कि आधा आकाश मेरा है, आधी जमीन मेरी है, आधा पार्लियामेंट हमें दे दो, पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने बहुत बारे औरतों को एड्रेस करके कहा है कि वो लोग हाथ उठाएं जो देश के बारे में कभी भी सोचते हैं। ज्यादातर औरतें देश के बारे में सोच ही नहीं पाती हैं। चाहे अपनी नौकरी करनी हो तो हम अपनी फैमिली, अरे फैमिली का एक बड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म हमारा कंट्री है, और देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होती है, सोसाइटी के प्रति भी होती है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पे और बोलूंगी। बहुत बढ़िया संगीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे ये बोलना, अपनी भी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आई गॉट मैरिड आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी, बट मेरे मन में एक सपना था साइंटिस्ट बनने का बहुत बचपन से ही। जब मुझे पता भी नहीं था कि मीनिंग क्या होता है साइंटिस्ट का, तब भी कोई पूछता था क्या बनोगी बड़ी हो गई, तो मैं बोलती साइंटिस्ट बनूंगी। और शादी हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड को ये पहले, शादी से पहले ही ये बोल दिया था कि आई विल स्टडी, मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी एंड आई विल वर्क एज अ साइंटिस्ट। और हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, तो मैंने बोला जैसे मैं आपके पेरेंट्स की इज्जत करूंगी, वैसे ही मेरे को उम्मीद है कि मैं आप भी मेरे पेरेंट्स को उसी इज्जत से देखेंगे, उसी वही रिस्पेक्ट उनको भी। तो 2 चीजें बस मैंने अपने हस्बैंड से क्लियर की थी। एंड शादी हो गई, उसके बाद जो मैं बीएचयू से करा हुआ है बीएससी,
और उसके बाद मैरिज मेरी नागपुर में, जैसे आप बता रहे हो मैं हाँ भी नागपुर आ हाँ गई। एंड हाँ देन वहाँ नागपुर यूनिवर्सिटी से कैंपस है, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ हम्म एमएससी में। हम्म आई वाज टॉपर इन हम्म बीएससी, तो अच्छे मार्क्स से हो गया। और हम्म। एमएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम संगीता जी मैंने 17 मई को दिया था, और 19 मई को आई डिलीवर माय सन। तो वाह सो तो ये फिर ये एक ये ये एक औरत की जर्नी जो है ना, ज्यादा उसके डायमेंशंस बहुत होते हैं। एक आदमी तो एक जी लीक पे चलता है, वो सिंगल माइंडेडली अपनी नौकरी करता है, अपने घर आता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, और बच्चे में जी वो केवल एक स्पर्म देता है, एक स्पर्म डोनर होता है, बाकी ज्यादा कुछ करता नहीं है बच्चे के लिए। औरत को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, और बखूबी बिल्कुल हर औरत कर लेती है उसको। जी। बस इसको किया, फिर पीएचडी ज्वाइन कर लिया, पीएचडी की, साथ साथ बच्चे भी हो रहे थे, मतलब एक बेटी भी हुई उसके साथ साथ में। फिर मैंने नागपुर में ही, नागपुर यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। फर्स्ट जॉब मेरी वाज एज अ प्रोफेसर। और फिर धीरे धीरे अपना दिल्ली शिफ्ट हुए, और इस तरीके से जर्नी चलती रही। तो बहुत एक्चुअली क्या होता है संगीता जी, हमें स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए। वी शुड बिल्कुल। कीप ऑन हाँ। लर्निंग थिंग्स, हम्म एंड कीप ऑन लर्निंग that then your personality, you make your personality yourself। तो हम अगर ये सोचे कि नहीं अब तो शादी हो गई, हमारी लाइफ स्टैग्नेट हो गई है, खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मैरिज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू, यू हैव फुल, यू नो। हाँ, ये बिगनिंग है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर जी बढ़ जाती हैं, आपका टाइम भी आपको कम मिलता है, मगर आपको उसी में मल्टीटास्किंग करनी है, अपने लिए भी समय निकालना है। औरतों के लिए बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें, नहीं देती हैं, अपनी हेल्थ खराब कर लेती हैं बच्चों के चक्कर में, पति के चक्कर। अरे उनको तभी तुम देख पाओगे जब तुम खुद फिट होगे, या आपने अगर कुछ, आपका इंटेलेक्चुअल फैकल्टी डेवलप होगा, बहुत अच्छा होगा, स्टेगनेट नहीं करेगा, तो बच्चे पे भी उसका ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग तो बनाना है ना। तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, इट वुमेन इज टू वुमेन, वेरी आई वांट टू इम्पोर्टेंट। से स्टार्ट। हाँ, मैं तो सेल्फ लव के की बहुत बड़ी वंस यू वो रिस्पेक्ट, हूँ। जी बहुत अच्छा। संगीता जी अब एक आप कोई अपनी पोयम सुना दीजिए मुझे। आपकी पोयम सारी ही बहुत अच्छी है, एंड्स आर बिगनिंग भी बहुत अच्छी लगती है, और फिर आपकी ब्लैंक पेपर और कैनवस भी बहुत अच्छी है। मैं एक तुम्हें हिंदी की नज्म सुनाती हूँ, और ये मेरी किताब है बेपरवाह रूह, इससे, क्योंकि एंड्स आर बिगनिंग की फाइल मेरे सामने यहाँ नहीं है, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, तो मैं वो किसी और मौके पे तुम्हें सुना दूंगी। ये नज्म का उन्मान है सागर के सीने में। सागर के सीने में दफना आई हूँ, एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। सागर के सीने में दफना आई हूँ, एक अधूरा अफसाना मोहब्बत का। कुछ अफसानों की उम्र नहीं होती, कुछ अफसानों की उम्र नहीं होती, ताउम्र निभाना फितरत में सबके शामिल नहीं होता। कागज पर उकेरी नज़में पानी के हवाले कर देना। आप अपना जो कुछ छोड़ के आते हो उसके बारे में बात कर रहे हो। कागज पर उकेरी नज़में पानी के हवाले कर देना, पानी स्याही के निशान भी मिटा देगी। पानी स्याही के निशान भी मिटा देगा। वक्त साथ देता तो तुम्हारी सांसों पर नज़में लिख देती। वक्त साथ देता तो तुम्हारी सांसों पर नज़में लिख देती। मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना, मेरी आवाज़ हवाओं के हवाले कर देना। कहीं दूर बंजर के खुरदुरेपन में इजाफा तो करेंगी। तुम आज़ाद हो अब, तुम आज़ाद हो अब, मेरी आवाज़, मेरी नज़मों और हरफों से। तुम आज़ाद हो अब, मेरी आवाज़, नज़मों और हर्फ से। तुम्हारी हद से निकलकर, तुम्हारी हद से निकलकर बेहद हो गई हूँ मैं, बेहद हो गई हूँ मैं। ये सारी, ये नज़्म मैं डेडिकेट कर रही हूँ औरतों को, कि आगे भी
एक रास्ता बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत कुछ खुलता है। तुम आज दूसरे को भी आजाद करो जी। और खुद भी हद को पार करने की कोशिश करो। लाइक बियॉन्ड बाउंड्रीज की बात हम कर रहे हैं। तुम्हारी हद से निकल कर जी, बेहद हो गई हूँ मैं, बेहद हो गई बेहद। हूँ मैं। हाँ, तो ये एक नज्म बहुत है। ही सुंदर, तुम्हारी हद से निकल के बेहद हो गई हूँ मैं। वाह, बहुत सुंदर, मैं एकदम दिल को छू गई एक और आपकी। एक और नज्म है जो हम कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। कई बार कंफर्ट जोन आपका पिंजरा होता है, उस पिंजरे को जी। के कंफर्ट से भी निकलना। औरतों को सोने के पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है तो वो उड़ने की सोचती भी नहीं है, हालांकि उड़ना जरूरी है। साथ कोई और उड़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तब भी आपको अपनी विंग्स को खोलना पड़ेगा। You need to contribute to society, you need to contribute to your country as well as to your family. तो फैमिली एक छोटा यूनिट है जिसमें आप होते हो। तो एक और छोटी नज्म है, बहुत छोटी है। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, पिंजरा छोड़कर जी। उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। जब आप उड़ोगे तो ही आसमां तक पहुंचोगे। वाह। उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक जी जी। पहुंचने का, आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना। एक दिन, वाह। एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। एक दिन वक्त वाह। और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। तो हर औरत के लिए मैं ये एक- डेडिकेट कर रही हूँ कि कभी आपकी सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए कि लाइफ नरक जैसी हो जाए तो उड़ने का हौसला रखना, और जब उड़ोगे तो आसमां तुम्हें मिलना ही है। अपने पंख को परवाज देना बहुत जरूरी है। दिस इज माई this is my I would like to inspire everybody to open their wings. वेरी गुड। तो स्प्रेड योर विंग्स एंड द स्काई इज द लिमिट। तो Yes. अगर आप, बिल्कुल, तो आप एक छोटे से जो परिवेश को छोड़ के जो शेल आपने बनाई हुई है, जो दीवारें अपने अराउंड खड़ी कर रखी हैं, उनको तोड़िए। गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू कैन अचीव अनलिमिटेड थिंग। जो भी आपके जहन में है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कन्वर्ट देम इनटू योर गोल्स। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में, गुरबानी में भी ये मेंशन है संगीता जी कि आप अपने गोल्स को कौन कारस सिरजे जग भीतर जन्म हाँ. कवन फल पाया। दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर कमिंग ऑन दिस अर्थ, and once you हाँ. identify the purpose, set it as a goal, start working towards goal to convert into your achievements and success. So this was said by Guru Nanak Dev Ji. हाँ, हर धर्म में यही लिखा है कि आप एक सोल हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस थॉट, यू आर नॉट दिस इमोशन, यू आर मोर देन दैट, यू आर अ सोल। एंड सोल हैज कम ऑन दिस अर्थ टू हैव अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, बट द सोल ऑल्सो हैज अ पर्पस। प्लीज फाइंड योर पर्पस एंड वर्क टूवर्ड्स इट। ये तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ का पर्पस खुद खोजें और उसको अचीव करें, क्योंकि सोल यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आई है। उसका कोई बड़ा पर्पस है। देयर इज अ हायर मीनिंग टू लाइफ एंड यू हैव टू इवॉल्व एंड रीच दैट हायर सेल्फ। इसके ऊपर संगीता जी मैंने 4 लाइनें लिखी थी, आपके साथ शेयर करूं? प्लीज प्लीज प्लीज। जी। बताओ। Sky is all yours if you can fly. Sky is all yours if you can fly. To see never seen colors and shapes. To see never seen colors and shapes. To try to understand the imperceptible. To try to understand the imperceptible power pervading the world. To fly and find pure ethereal substances that are not of matter, that are not of matter, but of invisible soul pervading reality. But it is of invisible soul pervading reality. To hear another soul, to hear another soul and to whisper to another soul, to hear How another beautiful. soul and to whisper to another soul,
to be lantern in the darkness or umbrella in the stormy day. You can be the umbrella Wow. for someone in the stormy day, to feel much more than you know, to feel much more than you know, to be the eyes of eagle, slope of mountain, to be wave understanding the influence of the moon, to be a tree, a reed, the memory of leaves, to be the tree who reads the memory of the leaves, and to be an insignificant pedestrian on the streets. Yes, I want sometime to be the insignificant pedestrian on the streets of crazy cities, watching, and watching, to be a smile on the face of women, to be the smile on the face of that woman, and shine in her memory as a moment saved without planning, and to shine in So her beautiful. memory as So a beautiful. moment saved It is without very important to be insignificant and do nothing and just observe life sometimes. You know, that is the pause which we must take often. And if you can make anybody smile, that is our biggest achievement. Oprah Winfrey, who is also, I really admire her, she always says that what we do in life, writing books or doing poetry or painting or anything, becomes less important when you create, when you touch a life. when you touch a life, किसी के जीवन में तो आप ऐसा तो एक मोमेंट क्रिएट कर दो जिससे उसकी लाइफ टच हो. Or touching lives should be our legacy. How many lives we have touched in this lifetime, that would be our legacy when we go away. That should be our legacy. So beautifully written. Really, very, very nice poem and very inspiring also. Thank you so much. Sangeeta ji, we want to know what is your message to the society, especially what message you want to give to the women, to the upcoming generation. तो आप ये बताइए कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो अपकमिंग जनरेशन है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? व्हाट इज योर मैसेज टू द सोसाइटी एज अ होल? मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स के लिए ये है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. यू मस्ट बी मोर फोकस एंड ऑल्सो achieving your individual goals are very important, but at the same time also look and hold hands. When people need you, you must hold hands. And अगर आपने किसी एक भी लाइफ को सपोर्ट किया है, कुछ पॉजिटिव दिया है और उसको आगे बढ़ने में मदद की है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर हम अपने केवल इतने सेल्फिश ना हो जाएं कि केवल अपने इतने सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाएं कि हमें दूसरों के लिए समय ना हो. अपने पेरेंट्स को देखो, आपकी पेरेंटिंग उन्होंने की है, ओल्ड एज में आपको वो रिटर्न करना, आपको उनकी पेरेंटिंग करनी पड़ेगी. माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए टाइम नहीं है. अगर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो तो अपना समय दो, इससे ज़्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है. थोड़ा सा समय दे दो किसी को, उसकी बात सुन लो. बी अ गुड लिसनर. हम हमेशा बोल रहे होते हैं सुनते कम है, तो दूसरे की बात सुन लो तो वो भी तकलीफ दूर हो जाती है. वंस वी बिकम गुड लिसनर्स, दैट ऑल्सो इज अ हीलिंग, you know, for the other person. दूसरा बंदा अपनी बात कह लेता है तो that he himself or she herself has healed herself to a great extent. Be a good listener. आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल के बच्चों के पास बिल्कुल दूसरों के लिए समय नहीं है. वो अपनी डिजिटल दुनिया में या अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि कई बार वो इन छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते. लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. तो हमें बैलेंस करके चलना है. दूसरों के लिए भी समय निकालना है, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी समय निकालना है. पर्सनल ग्रोथ केवल गोल्स को अचीव करना नहीं है. पर्सनल ग्रोथ है गुड हेल्थ, मेडिटेशन, योगा, so that you are fit. And these physical things like exercise and yoga are not only physical, they keep you physically fit, they also इवॉल्व यू इमोशनली. इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी इन चीज़ों से आती है. तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए लाइफ के प्रति, और ट्राई टू एंजॉय लाइफ ऑल्सो. गुड पोएट्री एंड आर्ट इज ऑल अबाउट हीलिंग अदर्स. जब मैं
मैं लिखती हूँ और मैं पेंट करती हूँ तो मैं अपने आप को हील कर रही होती हूँ, और अगर मैं उसको पब्लिक डोमेन में दूसरों से शेयर करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उस खुशी को थोड़ा बांट लूँ और दूसरों को भी मेरी पोइट्री या मेरे आर्ट से कुछ कैथारसिस मिले या कुछ अच्छा लगे. We should learn to enjoy the good things of life. That is also important. बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा मैसेज है आपका. संगीता जी, एक क्वेश्चन मैं जरूर यहाँ पूछूंगी कि जो आज हम देख रहे हैं कि because in the wake of COVID-19 people are in distress condition, they are facing certain mental conditions, and to extreme some of them are also committing suicide or they are not in good mental position. First question. And secondly, uh, the present scenario have seen many youngsters taking drugs. There's the cases of drugs abuse and the cases are coming forward. आप बॉलीवुड स्टार्स को देखिए तो कई लोग ड्रग्स के चक्कर में पड़ चुके हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, बल्कि इंडिया में तो इलीगल है बट कई जगह लीगल हो चुका है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट वी शुड डू to protect ourselves as well as to protect our dear ones from this abusive society, from this drug abuse as well as the mental distress condition? What is your take? There are two questions for you. The first thing is COVID pandemic. In last 7 months, it has changed us in a great way. We have there are good points and bad points. Bad points are that we are totally secluded, and it is leading to mental stress to a great extent to everybody. Yes. What can save us is from this, we can save ourselves is this is also a halt where you have paused and you can review your life lived so far. उसमें जब मैंने अपने को रिव्यू किया तो मुझे लगा कि मेरी बहुत सारी बकेट लिस्ट में मेरी चीजें हैं जो मैं जिनको अंजाम देना चाहूंगी, उनको ठीक से फाइन ट्यून करना चाहूंगी. एक आर्टिस्ट के लिए और एक पोएट के लिए तो अकेले रहना बहुत जरूरी है. हम लोग बहुत समय पूरे दिन का बहुत बड़ा पार्ट हम अकेले ही बिताते हैं, तो हमारे लिए इतनी बड़ी कोई इसका मसला नहीं था. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल 1 मिनट भी अकेले रहना पसंद नहीं करते. अगर कहीं कुछ नहीं है तो लगते हैं टीवी देखने. मतलब यू हैव टू लर्न टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ. दूसरी एक ह्यूमन नीड है अ गुड कन्वर्सेशन. ह्यूमन नीड है to touch each other, to hug each other, to express your love, to your friends, to your family. तो मैंने ये देखा कि वो लोग मिस कर रहे हैं जो बिल्कुल ही अकेले. जैसे I consider myself very lucky because my son is working from home. मैं इस पूरी लाइफ में मैंने उसके साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड किया था जितना अब कर रही हूँ. फिजिकली मुझे दिख रहा है ना कि एक अपना ऑफिस सेटअप करके घर में है, काम कर रहा है, मेरे साथ लंच खाता है, ब्रेकफास्ट खाता है, डिनर खाता है. ये टाइम भी उसमें जो अच्छा है उसको चुन लो. तो जो भी सिचुएशन है वो दैट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उनको एंड्योर करेंगे और जो उसमें से बेटर चीजें हैं उसको चुन लेंगे. तो मैंने ये चुना कि ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू improve your bonding with your family, with your friends. कई बार ऐसा होता है कि इतने हम बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं निकाल पाते. तो मैंने ये निकाला कि थोड़ा सा समय निकाल के जिन दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनसे रिकनेक्ट हो जाऊं. जो चीज़ें मेरी पेंडिंग हैं, मैंने कई बहुत समय से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तो वो कर लूँ. जो रुक करके अब आर्ट को थोड़ा रोक के या लिखने को छोड़ के बुक्स को कंपाइल कर लूँ, वो किया मैंने. तो हर आदमी को अपना वो चुनना पड़ेगा और अपने को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने एक नई चीज़ सीखी अमित. जब मैं मेडिटेशन करती थी पर वो बहुत रेगुलर नहीं था और बहुत कम टाइम के लिए करती थी. एटलीस्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स का मेडिटेशन आपको डिप्रेशन से बचा लेता है, आपको एक पॉजिटिव फ्रेम में रखता है. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल डू इट प्रॉपरली. तो मैंने प्राणिक हीलिंग की जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है वो अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल की बिगनिंग में ज्वाइन किया और कंटिन्यू रखा है. तो मेरा एक ऑनलाइन क्लास होता है जो 1 घंटे का होता है जिसमें वो पहले उसके बारे में बताते हैं और फिर हम एक साथ पूरे अर्थ के लिए मेडिटेट करते हैं, पूरे एनवायरनमेंट के लिए मेडिटेट करते हैं. वी हैव टू हील आवरसेल्फ एंड एज वेल एज वी हैव टू हील द अर्थ बिकॉज वी हैव मिसयूटिलाइज्ड
द एनवायरनमेंट, हमने उसका बहुत नुकसान किया है, हमें उसकी भरपाई करनी है तो कैसे करेंगे? वी हैव टू ब्लेस द अर्थ, वी हैव टू बिकम, यू नो, we have taken everything from the nature, we haven't given back anything. So to give back also is important. जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो ना, इससे ज्यादा खुशी किसी चीज से मिलती ही नहीं है, तो आपके लाइफ में एक पर्पस आ जाता है. दिस इज ऑल्सो अ पर्पस, अ स्मॉल पर्पस, अ टाइनी पर्पस कि आई विल मेक समबडी स्माइल टुडे, एंड दिस विल बी अ रूटीन, एवरीडे रूटीन, कि मुझे हर दिन किसी एक को थोड़ी देर के लिए खुश करना है. एक अच्छे कन्वर्सेशन से, एक अच्छे एक्ट से आप महसूस करा सकते हैं दूसरों को. लाइफ पर्पस, ये छोटे लाइफ पर्पस हैं मगर इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आप दूसरों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकते. ड्रग लेना बहुत ही खराब बात है. मैं समझती हूँ कि कोई भी नशा अच्छी चीज नहीं है. ड्रग लेने से हमारी पूरी जनरेशन बिगड़ रही है, पूरा पंजाब बिगड़ गया, पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह से बिगड़ गया. ड्रग एक बहुत ऐसी है, तो जो लोग ड्रग्स ले रहे थे या ले रहे हैं उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है, दिस इज माय prayer to them, God help them to realize that life is not all about कि हम नशे में पड़े रहें. नशा तो जिंदगी का होना चाहिए, नशा तो मोहब्बत का होना चाहिए, नशा ड्रग्स का नहीं होना चाहिए, नशा तो अच्छे काम का होना चाहिए. तो वो ड्रग छोड़ा भी जा सकता है. इट इज नॉट अनडूएबल. You can go to a rehabilitation center and revive your life. You can always come back to life. Life will hug you. आपको दोनों हाथों से जिंदगी आप वापस आपको प्यार करेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी. एक बार मौका दीजिए, अपने आप को भी मौका दीजिए. आप जब ड्रग लेते हैं तो अपने आप को भी नहीं, आप अपना ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, और उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आपकी फैमिली रुइन होती है, आपके जो आपको प्यार करते हैं उनको दुख पहुंचाते हैं, आप अपने शरीर को कष्ट देते हैं, और आप अपना बेस्ट, अपना ऑप्टिमम जो है सोसाइटी को भी नहीं देते, खुद को भी नहीं देते. तो ड्रग्स, वी हैव टू से नो टू ड्रग्स. और डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ रखें. उसमें थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन ऐड करें, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, ऊपर वाले की तरफ भी देखें, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें. आई थिंक ग्रेटिट्यूड जो हम रखते हैं, अगर ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी दी है तो उसको लेने का अधिकार हमें नहीं है. हम सुसाइड नहीं कर सकते. वो एक डिफीट है. सुसाइड इज अ डिफीट एंड वी मस्ट. अगर हमें फ्रेंड्स की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, हम अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ोन उठाइए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, शेयर करिए. शेयरिंग विल लीड अस टू पॉजिटिविटी. आई थिंक डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खूब सारे दोस्त होने चाहिए. किसी से मोहब्बत कर लो, उसको बताओ. ऐसे मोहब्बत जो है केवल इंसान किसी एक से नहीं करता. मोहब्बत आप पूरी कायनात से कर सकते हो. एक चिड़िया से कर सकते हो, एक छोटे फूल से कर सकते हो, तितलियों से कर सकते हो, अपने दोस्तों से कर सकते हो, अपने बच्चों से कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो. तो आप लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपनी लाइफ में मीनिंग्स डालिए, यही जरूरी है. कोविड क्या है, आया है और चला भी जाएगा. जैसे आया है वैसे जाएगा भी. आपको ये समय मिला है मुड़कर चुपचाप बैठकर अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करिए, और जो कमियां हैं उसमें ऐड करिए. मैं थोड़ी वो मेडिटेशन नहीं करती थी, मैंने ऐड किया तो मेरे को एक बैलेंस मिला और अच्छा लग रहा है. मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पा रही हूँ. आई एम मोर चेयरफुल, मोर हैप्पी, एंड आई एम रेडी टू शेयर ऑल माई हैप्पीनेस विद अदर्स. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपने तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया. एंड आई होप आवर यंगस्टर्स and the generation who is under drug abuse or in mental distress condition, they will channelize their energy towards positivity. They can go for dancing, for singing a song, or adopt any hobby, or being bit spiritual, or just planting some saplings and trees, because I support, I always say that plant more and more trees, and try to lead a zero waste lifestyle, और थोड़ा सा रिसाइकल. ये सारी चीजें अपने लाइफ में अडॉप्ट करिए. देखिए कितनी चीजें हैं सीखने के लिए, और सिखाने के लिए, करने के लिए, और बताने के लिए. So just going in some mental condition is not the answer. अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, just talk to your dear ones. अपने जो आसपास लोग हैं उनसे बात करिए.
नहीं अगर हेल्प हो रहा है तो पिक अप योर फोन एंड कॉल योर डॉक्टर, साइकोएट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए. देयर इज नो शेम इन टेकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट if they can cure, but then first you try to cure yourself, to heal yourself by just channelizing your energies towards positivity. संगीता जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिफोर वी से गुड बाय टू आवर ऑडियंस, एक आप अपना कोई भी पोयम कह लीजिए, गजल को भी हमारे साथ शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा, मैं कुछ एक लंबी कविता है मगर उससे पोएट क्या होता है उसके बारे में बोलना चाहूंगी. ये बहुत आजकल पसंद की जाती है कि पोएट होता क्या है, शायर होता क्या है. जी, कई जन्मों की प्यास. मैं आपको फुल स्क्रीन कर रही हूँ. अच्छा. कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है. कई जन्मों की प्यास और बेचैनियां लेकर कोई इस जमी पर उतरता है तो शायर होता है. एक टूटा सितारा जिसे आसमान ने बेघर किया हो तो शायर होता है. बेवजह खुश और बेवजह उदास होता है. सारी रात जागता है और दिन भर खुली आंखों ख्वाब देखता है तो शायर होता है. पत्थरों से मोहब्बत का जज्बा रखता है. मौसमों के साथ मुरझाता और खिलता है तो शायर होता है. फूलों के संग खिलता है, तितलियों के संग उड़ता है, बारिश के संग बरसता है तो शायर होता है. अब इसी की मैं लास्ट लाइनें कुछ पढ़ देती हूँ. बहुत लंबी नज्म है. ये हम सबके लाइफ पे भी अप्लाई होता है. जेब में पैसे ना हो तो भी बेफिक्र सा लगता है. अजनबी की मदद करता है तो शायर होता है. जमीन पर रहता है पर आसमां से मोहब्बत करता है. जो आसमां मिल जाए तो जमी को तरसता है तो शायर होता है. 7 समंदर पार किसी की मुस्कुराहटों का सबब बनता है. हजारों दिलों में एक साथ धड़कता है तो शायर होता है. दुख में ज्यादा दुखी और सुख में ज्यादा सुखी होता है. किसी की दुआओं में असर बन उतरता है तो शायर होता है. किसी के ख्वाब मुकम्मल करता है तो शायर होता है. किसी रोते हुए का कंधा होता है. किसी बुजुर्ग के लिए समय बच्चों का काबली वाला होता है तो शायर होता है. किसी के ये हम सब के लिए है और अमित ये मैं तुम्हें डेडिकेट कर रही हूँ. किसी के पस्त हौसलों में पंख सा उगता है. किसी के पस्त हौसलों में पंख सा उगता है. किसी अंधेरे सीने में चिंगारी सा सुलगता है तो शायर होता है. तो शायर होता है. वाह, wow, big round of applause. Wow, you are the best. Wow, मतलब मेरे माइंड से just I am speechless now, संगीता जी. मुझे लग रहा है और मैं क्या पूछूं, बस अब मैं कुछ पूछ ही नहीं सकती, कुछ बोल ही नहीं सकती. I am just speechless. कुछ इतना अच्छा, मतलब आज का आपका साक्षात इंटरव्यू हुआ और मुझे इतना इंस्पिरेशन मिली. एंड आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट बी वोकल लाइव टॉक शो. और अभी भी दिल नहीं भरा है संगीता जी. हमने 1 घंटा 10 मिनट होने वाले हैं, बट मुझे लगता है और बातें करते रहें, बट हमारे समय की सीमा है कुछ. तो इसलिए हमें आज यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा. लेकिन जी हाँ, बोलिए. बहुत शुक्रिया. बहुत नवाजिश आपने ये मौका दिया मुझे. और अमित तुमसे बात करके हमेशा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. द एडमिरेशन इज म्यूचुअल.
है ना, तुम इतना काम Thank करती हो, औरतें काम करती है, मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है इस बात से कि औरतें कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक पॉजिटिविटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तुमने इतना काम किया है, तुम यू आर अ हीलर, एंड आपसे बात करना अपने आप को हील करने जैसा है। थैंक यू Thank सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, शुक्रिया और नवाजिश, और लुक फॉरवर्ड टू thank you. many more such occasions where we can interact and be with other people, and इंशाल्लाह कोविड भी एक दिन खत्म हो जाएगा और हम वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर रूबरू हो पाएंगे, ऐसी ख्वाहिश है हमारी। और ख्वाब देखना कहीं मना नहीं है। एक प्लान कर रही हूँ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो उसमें आई विल बी इनवाइटिंग यू एज अ स्पीकर, क्योंकि आपकी बातों को सुन के ना ऐसा लग रहा है कि आपको और लोगों को भी और लेवल पे सुनने की जरूरत है। तो हम और लोगों से और वुमेन को यहाँ पे हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, जहाँ पे आई विल बी इनवाइटिंग यू एज अ स्पीकर टू टॉक ऑन हाउ वुमेन शुड एम्पावर देमसेल्व्स, किस तरीके से वो अपने आप को और ज्यादा एम्पावर कर सकती हैं, और ज्यादा सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकती हैं। तो उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। I will look forward to that opportunity. It is always a pleasure to talk to you and interact. हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, और औरतों को यही बात मैं समझाती हूँ कि let's hold hands. डॉट्स को कनेक्ट करने से हमारी कायनात और खूबसूरत बनेगी और मजबूत बनेगी। संगीता जी, मैं एक चीज, क्योंकि मेरे अंदर भी एक पोएटिस जन्म ले रही है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। प्लीज सुनाएं। एक, हाँ, 2 लाइन सुनाऊंगी और फिर उसके बाद बाय बोलती हूँ। ठीक है। The name of the title of the poem is In the Wake of Reality. तो ये एक स्त्री की मन की बारे में बताया गया है कि जब वो 2 तरह से जीवन जीती हैं, एक ड्रीम वर्ल्ड होता है और एक रियल वर्ल्ड होता है। तो रियल वर्ल्ड में जब वो आती हैं तो वो क्या एक्सप्रेस, उनकी जो थॉट्स हैं वो कैसे एक्सप्रेस करती हैं, उसके ऊपर है। In the wake of reality, I decided to forget you. In the wake of reality, I decided to forget you. You also promised that you will forget me too. You also promised that you will forget me too. I was addicted to you due to care and love showers. Though I promised, but forgetting you seems beyond my powers. Though I promised, but forgetting you was beyond my powers. But I want to forget you. But still, I want to forget you and lead my life real and new. But in my every breath, I remember you is also true. But in my every breath, I remember you is also true. You shared, you cared, my joy, my happiness, my fears, my tears. You shared, you cared, my joys, my sorrows, my happiness, my fears, my tears. Every moment, each day, weeks, months, and years. Every moment, each day, weeks, months, and years. You were my lifesaver, oxygen and air. You were my life, my part, my life sphere. You were my life, my part, my life sphere. You were in my arteries, nerves, and vein. Together we were joyful, mad in love, and insane. You existed in my emotions, heart, and brain. You were in my arteries, nerves, and vein. Together we were joyful, mad in love, insane. You existed in my emotions, heart, and brain. But in the wake of reality, I decided to forget you. You also promised that you will forget me too. I will forget you. I will forget you. I promise, have trust. I will forget you. I promise, have trust. But it is my request, you forget me first. But it is my request, you forget me first. ये जो सिलसिला है ना, ये जो मोहब्बतों के सिलसिले होते हैं, कोई किसी को भूलता नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट फॉरगेट, दे कैन फॉरगिव ईच अदर। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हम एक दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं। फॉरगेट करना जरूरी भी नहीं है। वही मैंने कहा ना कि एक खूबसूरत मोड़ देकर चीजों को छोड़ देना चाहिए। और आपने तो शर्त ही रख दी है कि पहले तुम भूलो मुझे, तो वो होगा नहीं। वो होगा नहीं। तो तुम्हारे लिए एक शेर है और इसी पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी।
रोने के 100 बहानों पर, रोने के 100 बहानों पर मुस्कुराने की एक जिद भारी पड़ती रही ताउम्र। रोने के 100 बहानों पर मुस्कुराने की एक जिद भारी पड़ती रही ताउम्र। तो ऐसे ही हंसती रहो, खिलखिलाती रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो, अपनी स्माइल बांटो। इट इज वेरी कंटेजियस। यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बाय। Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thanks Bye. for being Bye. here. Thank you. Thanks for. Bye. Bye. So guys, this was Sangeeta Gupta ji. She has shared her beautiful, lovely golden words of wisdom with all of us. I was so inspired and motivated by her talk, and her compositions are beautiful, her paintings are wonderful, and she herself is lovely human being with beautiful soul. So with the promise to come tomorrow again at 11 a.m., I am signing off for today. Thank you so much. Thanks for being here at the show.